ना बैग छुपा दिया। Nidhi, please tell her the correct pronunciation of third form of height. Hi. Hidden. Is it Nasa? Hidden. हिडन। Hmm. Hidden, Rupal ji. हिडन। Nidhi, can you guess what should be the next chapter? So, the next chapter should be future perfect tense. Yes. Ask the same Sir, question. sir, Hmm. sir, Yes, Nini? that I am not visible and audible. Okay, okay. Uh, Rupal ji, what should be the next heading? No, the next chapter. The next chapter. The next chapter is future perfect. Come again. The next chapter is future perfect tense. Should be Rupal ji, है ना? The next chapter should be future perfect tense. Can you ask second question? Neha, Next question, can you ask Rupal ji? what is the identification? Okay, don't worry. Nidhi will ask. You can mute yourself. Neha, what should be the next chapter? The next chapter should be future perfect tense. Nishadi, what should be the next chapter? The next chapter should be future perfect tense. Nimi, Nisha, Nidhi will be mute today, so you can ask Rupal ji. Rupaldi, what should be the uh, next chapter? The next chapter should be future perfect. And Nidhi, ask the Nidhi, next question. Mute yourself. Thank you. Neha, what should be the first point? The first point should be identification. अब अगला ही सवाल पूरा करना है, आगे चलते जाना है, ठीक है? Okay, sir. Nishadi, what should be the first point? The first point should Sorry, be what should be the identification? the identification should be uh, uh, I don't know. Rupaldi, Rupaldi, what should be the uh, identification? identification should be the I don't know also. And Nidhi, what should be the identification? The identification should be uh, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे.
and so on. Neha, what should be the second point? The second point should be formula. Nishadi, what should be the formula? The formula should be, I don't know. Nidhi, what should be the formula? Rupaldi, what should be the formula? And the formula should be subject plus shall, will, and Nidhi, what should be the formula? The formula should be subject plus will oblique shall plus have plus third form of the verb plus object plus extension. Ask the same question to somebody else. Neha, what should be the formula? The formula should be subject plus will have oblique shall have plus first third form of the verb plus object plus extension. Rupal Nishadi, what should be the formula? The formula should be subject plus will oblique shall have plus third form of the verb object. Good morning. Something Uh, is rest. Last point is rest. plus extension. Rupaldi, what should be the formula? Formula should be of plus Rupalji, your voice is badly chopping. plus of Okay, guys. कल वाले टेंस में हमने देखा था कि पास परफेक्ट के साथ दूसरा टेंस कौन सा होता है, किसी को याद है तो बताएं। Sir, past simple. वेरी गुड। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना। इसमें भी करीब करीब वही नियम लगता है। इसमें भी एक सिंगल सेंटेंस नहीं बनता है, जोड़ा रहता है। तो क्या कोई बता सकता है, अभी निधि ना बताए, आखिरी में निधि से पूछेंगे कि दूसरा टेंस कौन सा होना चाहिए, कॉमन सेंस के हिसाब से बताएं। Sir, future simple. निशा तुम भी बता दो। सर, प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। रूपल जी आप भी बता दें। present perfect. वेरी गुड। अब आखिरी में हम निधि से पूछते हैं, सुनिएगा ध्यान से। निधि। सर दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनता है। हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा म्यूट करके, और अगर अभी आपके नेटवर्क में इश्यू है तो ये रिकॉर्डिंग देखिएगा बाद में और अच्छे से आत्मसात कीजिएगा। दोस्तों इंग्लिश में प्रेजेंट और फ्यूचर की शादी हुई है, ऐसा कह सकते हैं। फ्यूचर एंड प्रेजेंट आर मैरिड, इनका साथ रहता है, ये एक दूसरे के साथ ही हैं, शादीशुदा कह सकते हो।
अपन ने वो इफ वाले सेंटेंस में भी ये Yes, चीज sir. Yes, I was going to say. यस You कि told. अगर तुम पंखा बंद नहीं करोगे तो दिन भर चलता रहेगा, वहां पे भी प्रेजेंट और फ्यूचर आया था। तो अंग्रेजी में कुछ नियम तो ऐसे हैं कि अगर एक बार आत्मसात कर लिए तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होती। हम एक सेंटेंस दे रहे हैं, राधा छाप दे रहे हैं, तो उससे तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये पिछले सेंटेंस से मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से लिखना। हम 2 बार बोलेंगे, फिर एक आध बार निधि, आज निधि का रिसेप्शन एकदम क्लियर है, उससे बुलवा देंगे, रूपल जी का क्लियर नहीं है। पहला सेंटेंस लिखो। मुझे लगता है, कॉमा, मुझे लगता है, कॉमा, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी। रूपल जी, आप चाहे तो डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करें, आपका नेटवर्क बहुत खराब है। सर पहले ही ट्रेन जा जा चुकेगी। छूट चुकेगी। मुझे लगता है आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी। मुझे लगता है आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी। एक बार निधि इसको रिपीट कर दो ताकि सब लोग अच्छे से सुन लें। मुझे लगता है आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी। एक बार निशा से भी बुलवा लेते हैं, फिर नेहा से। मुझे लगता है आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी। नेहा। नेहा, मुझे लगता है आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी होगी। बढ़िया। रूपल जी ने सुन लिया, उन्होंने डिस्कनेक्ट करके वो थोड़ी देर में कनेक्ट हो रही हैं, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। Who has to make this sentence? कल मिनी ने बना लिया था, और अब उसके बाद नेहा, नेहा तुम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो क्या? सर बट इसमें इंटरचेंज होगा। अभी मैंने जो बोला वो सुन नहीं पाई, शुड आई रिपीट? चलो यस मैं सर। बता देता हूं। नेहा, क्या तुम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हो? जी सर। कर रही हो ना? जी सर। सर लास्ट ईयर है। तो फिर तुम्हारे भी उपयोग का है ये, तो इसलिए यू शुड मेक दिस सेंटेंस। और सेंटेंस बने ना बने ये ओके। महत्व नहीं है, कितना भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन उस बहाने तो मुझसे इतनी सारी इंग्लिश निकलेगी, इस चीज को ध्यान में रख के शुरू हो जाओ। फिर हमारे पास 2 कैंडिडेट और भी हैं फिलहाल, निशा और निधि। रूपल जी भी रिकनेक्ट होती होंगी। स्टार्ट। हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस, नेहा? I have to make this sentence. This sentence related to future perfect. This sentence is having two parts. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is you. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is will have. Later on, thereafter I will take the
third form of the verb. The third form the verb is okay. And the third form of the verb is I forgot. Some verb I forgot. Richard. The third form of the verb is in the third form of the verb is Richard. Later on I will take the object, and the object is station. Later on I will take the extension, and the extension is the train. Okay. Are you done or rest? Okay. Actually, I went to take water, so I could not listen completely. एक मौका निशा को देते हैं नेहा, ठीक है, फिर रूपल जी को. Nisha, who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. This sentence is related to future perfect and to having parts. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and subject the day train, and later on I will take the helping verb. The helping verb is will oblique have. The helping verb is will oblique have. Later on, I will take the third form of the verb. The third form of the verb is चुकेगी. Sir, sorry. Sir, there. Sorry is not required. You tried well. चलो एक मौका रूपल जी को भी देते हैं. रूपल जी, who has to make this sentence? I have this sentence. This sentence is future perfect tense. And this is affirmative sentence. First, I will take the subject. It is the train. Main verb, and the main verb is will have. Will have. Object नहीं आएगा. Have. That is will have. After later I
Later on, third form of verb. The third form of verb is and should be able for the third form refers in of ओके, थैंक यू। आप लोग निशा को समझ में भी आ रहा था, हंसी आ रही होगी। रूपल जी का एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके प्रयास को हम सराहते जा रहे थे। नेटवर्क उनका बहुत गड़बड़ है, लेकिन वो इंग्लिश I'm तो not बोल ही रही audible. थी। ये तो सही है कि वो इंग्लिश बोल रही थी, भले हमें नहीं सुनाई दे रही थी, वो इंग्लिश बोल रही थी। ये महत्वपूर्ण चीज है। चलिए फाइनली निधि तक पहुंचते हैं। Sir, Who has can I? been- अरे जो का होगा वो। सर मैं अभी कार में थी, अब घर पहुंच गई हूँ इसलिए। अच्छा ठीक है, हाँ गो है। Sir, I have to make this sentence. This sentence is related to future perfect tense. This sentence is having three parts. First part is simple present, and second part. Sorry, this sentence is related to two parts. First part is simple present, and second part is future perfect tense. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is think. Thereafter, I will take. Thereafter, I will take of nahi subject. I think the train. Thereafter, I will take main verb, helping verb, and helping verb is will have. Thereafter, I will take third form of the verb, and बेटा मिनी इस पॉइंट को एक बार और बोलना। thereafter I will take helping verb, and the helping verb is will have. गुड। Thereafter, I will take third form of the verb, and the third form of the verb is left, and thereafter I will take the object, and the object is the station. Thereafter I will take the article, and the article is the. Thereafter I will take the object, and object is station. Thereafter I will take um, sir I forget uh, मतलब only one word, और उसके बाद thereafter I will take subject,
and subject is you. Thereafter, I will take second form of the verb, and the second form of the verb is arrived. Thereafter, I will take preposition, and the preposition is over. And lastly, I will take object, and object is there. Well said, well tried. Finally, I would like to invite Nidhi Patel. Nidhi, who has to make this sentence? So I have to make this sentence. This sentence is related to future perfect tense. This sentence is having three parts. First, Yes. ये तुम लोगों को गलत आ गया है जुबान पे, पहले सही करते हैं। अगर तुम बोल रही है फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड है तो थ्री पार्ट्स कैसे बता रही हो? तीनों फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड हैं क्या? तो एक बार सोच के बोलो कि सबसे पहले हम क्या बोलेंगे। this sentence is related. This sentence is having three parts. ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। This is The having first three part. और तीनों अलग अलग हो सकते हैं। The first part is related to present simple tense, and the second part is related to future perfect tense, and the third part is also related to present simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is think. Later on, I will take the subject, and the subject is the train. Later on, I will take the helping verbs, and the helping verbs are will have. Thereafter, I will take the third form of the verb, and the third form of the verb is left. Thereafter, I will take the article, and the article is the. Later on, I will take the object, and the object is station. Thereafter, I will take the conjunction, and the conjunction is before. Later on, I will take the subject, and the subject is you. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is reach. Later on, I will take the preposition, and the preposition is over. And lastly, I will take the object, and the object is there. Finally, full stop. There. मिनी रास्ते में थी तो वो उस नियम को सुन नहीं पाई होगी, इसलिए वो वहां सेकंड फॉर्म में रही थी। Is complete sentence visible to you? Yes, sir. Complete sentence is visible to us. Mini, speak. I think the train will have left the station before you reach over there. Nehadi? Sorry for mini. हाँ, ओके सर। मुझे लगता है आपके वहां पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी होगी। It will do. Nidhi left. So Nidhi is here. Okay, Nidhi. I think the train will have left the station before you reach over there. मुझे लगता है आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी।
Very nice. Neha? I think the train will have left the station before you reach over there. मुझे लगता है आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी होगी। रूपल जी? I think the station before you reach over there. मुझे लगता है आप स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन छूट चुकी। अब एक काम कर सकते हैं रूपल जी आप, कि डिस्कनेक्ट होके अपना फोन स्विच ऑफ करें, फिर स्विच ऑन करें। ये भी एक भारतीय तरीका है। निशा? दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करने की कोशिश करें तो उससे भी ज्वाइन नहीं है। मैं दूसरे मोबाइल ज्वाइन करने की कोशिश की, उससे भी ज्वाइन नहीं हुई। Nisha, speak the sentence. I think the train will have left the station before you reach over there. मुझे लगता है आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकेगी। Neha, can you tell me? अच्छा, Neha is busy. Nisha free है। Nisha, can you tell me what should be the next heading? Sir, the next heading should be. Sir, I don't know. Sorry. No, don't say sorry. Ask the same question to Nidhi Didi. Nidhi, what should Sir, be? I am not Didi. I am her younger sister. Okay. Do not ask Nidhi Didi, ask Nidhi. Nidhi, what should be the next heading? The next heading should be present perfect continuous tense. Neha, what should be the first point? The first point should be identification. Nisha ji, what should be the identification? The identification should be. I don't know. No. Rupaldi, what should be the identification? I don't know what should be the identification. Good morning, Rupal ji. Neha, what should be the identification? Rupal ji, the identification should be I don't know. Nidhi, what should be the identification? The identification should be से रहा है, ऐसा कुछ से रहा है, से रही है यार, से समय आएगा एंड सो ऑन। ओके जी, तैयार है, अच्छा है। दोस्तों, ये जो टेंस आप देख रहे हैं, आराम से पहले उसकी हेडिंग लिख ली। इज इट विजिबल टू यू और नॉट? Yes, sir, it is clearly visible to us.
ये टेंस दोस्तों दो टेंस से मिलकर बना है, आप ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस। पहले लिख लीजिए क्योंकि आपका ध्यान लिखने में अच्छे से लिख लें। Nidhi, have you written? Yes, sir. I have written the uh, नहीं, इतना पर्याप्त। heading. क्या आपने लिख लिया? जब कोई आवाज नहीं आ Yes. रही थी तो हमने बोला हम ही पूछ लें, तुम भी बाकी से पूछ लो। Okay. Neha, have you written? Neha, Yes, I have written. what should be the identification? अभी मत छेड़ो, मत पूछ लो, ये अपन आगे बढ़ते हैं। Neha, have you written? Yes, I have written. Nishadi, have you written? Yes, Neha, I have written. Rupaldi, have you written? Yes, Nisha. Done. All are done. Mini is rest. Rupalji. Can you have Yes, dear, I have written. दोस्तों जैसे मान लो कुछ छूट गया है लिखना, आपको लिखने में इतना ज्यादा मशगूल नहीं होना चाहिए क्योंकि सब रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। आप बाद में वीडियो से देख सकते हो, लेकिन क्या करो। ओके, तो ये टेंस दो टेंसेस से मिलकर बना है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा कंटिन्यूअस। तो जाहिर सी बात है इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी दोनों का मिला जुला रूप होगी। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में तो चुका है चुकी है शब्द आपको रटे हुए हैं या कर लिया है, तो वैसी आइडेंटिफिकेशन तो नहीं होगी। तो इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि कोई कार्य काफी देर से, काफी समय से, काफी दिनों से चल रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोला जाता है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन में से शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। से, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, वह 4 महीने से इंग्लिश सीख रही है, हम जन्म से जबलपुर में रह रहे हैं, आदि आदि। तो इसके आइडेंटिफिकेशन में ऐसे ही शब्द आएंगे, कंटिन्यूटी ज्यादा होगी इसमें। तो हम आइडेंटिफिकेशन लिख रहे हैं, आप साथ साथ लिखिए, छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं।
चलो इस समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि पिछले बार इतना सारा सन्नाटा छाया था, तो इसका सदुपयोग करते हैं। इस बार मैं इस बी प्रेजेंट में पूछ रहा हूँ। निधि, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? सर द आइडेंटिफिकेशन इज समय से पढ़ रहा हूँ, या कपड़े धो रही है, या सुन रहे हैं, एंड सो ऑन। नेहा, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? The identification is समय से पढ़ रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, या सुन रहे हैं, एंड सो ऑन। निशा दी, what is the identification? The identification is पढ़ रहा हूँ, कपड़े धो रही है, सुन रहे हैं, एंड सो दीदी, ऑन। सॉरी दी। Identification is। नहीं निशा, तुम्हारा बिल्कुल सही था, वो धोखे से सॉरी हो गया। आगे पूछ। Rupaldi, what is the identification? The identification is समय से पढ़ रहा हूँ, कपड़े धो रही हैं, सुन रहे हैं, so on. Nithi, Mini, what is the identification? The identification is समय से पढ़ रहा हूँ, कपड़े धो रही हूँ, या सुन रहे हैं, एंड सो ऑन। अच्छा मिनी, तुम घर वापस आ गई ना? यस सर। कार में तो नहीं हो? कम अगेन सर। कार में तो नहीं बैठी है ना अभी? नो सर, अभी बाहर ही बैठी हूँ मैं, कार से जस्ट उतर के। तो मतलब दिख नहीं सकती हो अभी? नो सर। क्यों, अच्छे कपड़े पहन के नहीं गई थी बाहर? नो सर, अच्छे कपड़े पहन के तो गई थी, बट यहाँ पे लाइट नहीं है। दिखाओ दिखाओ, अच्छे कपड़े दिखाना चाहिए ना। ओके, अब दूसरे बिंदु पर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे दोस्तों, इसको समझिएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, अगर आप इंग्लिश में हैं, आप में से कोई अच्छा श्रोता हो तो वो दोहरा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। नाउ आई एम neither going to ask what is the formula nor going to tell what is the formula. पहले तो इसका कोई हिंदी बता दो। आई एम नीदर गोइंग टू आस्क, या तो मैं फॉर्मूला मैं सबसे कोशिश करो। पूछने जा रहा हूँ, या फिर लास्ट का बोलोगे? राइट, किसी और को कोशिश करने दो। हु इज रेडी? सर ये ग्रामर में आते थे, 1 नंबर के। सर कहना ही ना, मैं फॉर्मूला पूछने जा रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है, और ना ही ये बताने जा रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है। Absolutely correct. Neither I am going to ask nor I am going to tell. इतना तो बोल दो निधि। Neither I am going to ask nor I am going to tell. मिनी,
Neither I am going to ask, nor I am going to tell. नेहा, Neither I am going to ask nor going to tell. निशा जी। रूपल जी, neither I am going to ask, neither not tell. good. So the question is, what are we going to do? तो सवाल ये है कि हम क्या करने वाले हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। The answer is we are going to discover the formula. हम इसके फॉर्मूले की खोज करने वाले हैं या खोज करने जा रहे हैं कि जब अंग्रेजों ने इसका फॉर्मूला बनाया होगा तो उनको क्या क्या समस्याएं आई होंगी और किस तरह से उन्होंने इस टेंस का निर्माण किया होगा, उस स्थिति तक हम चलते हैं। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको बचपन से रटा हुआ है, अगर हम पूछेंगे तो वो बता भी देंगे अच्छे से, लेकिन अपन इसको एक दूसरे तरीके से सीखते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले अंग्रेजों ने इसको, इसमें जो ये दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको बनाने। अभी दोस्तों इसका फार्मूला लिखने के लिए आप आतुर मत होइएगा, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ। यहाँ मैं लिखना शुरू करता हूँ, वहां पे आप भी शुरू कर देते हैं। ऐसा इस बार मत कीजिएगा क्योंकि इस बार फॉर्मूला काफी बड़ा होने वाला है, और अगर आप एक बार साइज देख लीजिएगा तो फिर आप बाद में आप थोड़ा सा कंजूसी से छोटे छोटे लेटर बना के ही लिखिएगा, क्योंकि आप में से अगर कोई केमिस्ट्री वाला होगा, एमएससी वगैरह किया होगा, तो वो जानता होगा कि फॉर्मूला हमेशा एक लाइन में आना चाहिए, नीचे नहीं उतरना चाहिए, ये नियम होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एकदम मरे मत जाइएगा फार्मूला लिखने के लिए। मैं काफी समय दूंगा आपको, आराम से लिखिएगा, पहले समझ लीजिए उसको। तो जब अंग्रेजों ने इसको बनाने की कोशिश की तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट सामने रखा। तो आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में पहली चीज क्या आती है निधि? नेहा तुम बता दो पहली चीज क्या आती है, वो अपने मोबाइल को एडजस्ट करो। चलो रूपल जी आप ही बता दो। सर रहने दो, सब्जेक्ट। रुक जाओ, इतनी देर नहीं वेट करते ना अपन। चलो मिनी तुम बता दो। सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहली चीज। अब तुम किसी और से पूछ लो कि दूसरी चीज क्या आती, तब तक मैं लिखता। रूपल दी दूसरी चीज क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, निशा सेकेंड, हिंदी में ही पूछना है, सेकेंड इंग्लिश में नहीं पूछना है, हिंदी में ही पूछना। दूसरा वर्ड क्या होगा? बढ़िया, सर हेल्पिंग वर्ब। वाह गुड, आगे पूछिए। निधि, इसके आगे क्या होगा? इसके आगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। मिनी इसके आगे क्या होगा, क्या आएगा? दी हेल्पिंग वर्ब। चलिए मैं बता देता हूँ, मुझे जहां तक याद है प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव आता है।
अब अगर आप में से किसी को थोड़ा सा भी याद हो तो अगली चीज क्या आती है बता दे, नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा। सर इसके साथ आएगा बी का। नहीं, हम फॉर्मूला आपसे वो लिखा हुआ 27 साल वाला जानने के इच्छुक कतई नहीं है। हाँ हमने इसके। अंडरलाइन भी दोबारा किया है। हम्म आप अभी रुक जाए, थोड़ा धीरज रखें। निशा, हम्म हम्म Sir, I think third form of the verb. वाह यार, पहली बार हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आई थिंक लगा कि सब कचरा कर देता है व्यक्ति। ये सेंटेंस बातचीत में बड़ा अच्छा है, लेकिन जब आपको कहीं किसी सवाल का ठोस जवाब देना हो तो ये आपके कमजोर कॉन्फिडेंस की ओर संकेत करता है। वेरी गुड नेहा। हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म का चोली दामन का साथ होता है, ऐसा मुहावरा शायद मैंने बोला होगा, या हो सकता है मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, भूल भी गया हूँ, नहीं बोला होगा। नो सर, यू टोल्ड अस। अब थर्ड फॉर्म तो जरूरी था, यहाँ रखना ही था। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे जब थर्ड फॉर्म रखने की प्रक्रिया शुरू की, मान लो जैसे संग रखना, संग थर्ड फॉर्म है सिंह का, या प्लेट रखा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड है, या गॉन रखा, गो का थर्ड फॉर्म गॉन है। तो उनको एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई कि अगर हम कोई भी वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म रखते हैं तो जब यहाँ मुख्य क्रिया रखने जाएंगे कंटिन्यूटी की, जिसमें कि आईएनजी लगना है, तो फिर एक क्रिया और फिर ये दो क्रियाएं आपस में टकराएंगी, दो दो अर्थ निकलने लग जाएंगे। एक ये और दूसरी जो आने वाली है मेन वर्ब। तो अंग्रेज बहुत परेशानी में पड़ गए और उन्होंने घोषणा की कि कोई ऐसी क्रिया बताइए जो एक से अधिक अर्थ भी लिए हुए होती है, लेकिन अपने आप में निरापद भी होती है। निरापद साहित्यिक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी और पर असर ना डालने वाला, किसी और पर असर ना डालने वाला, निरापद। तो सब ने मिलकर खोज करना शुरू की कि ऐसी कौन सी क्रिया है जो एक से अधिक अर्थ भी रखती है और अपने आप में निरापद भी होती है। तो ढूंढते ढूंढते उनको पूरी इंग्लिश में एक ही वर्ब मिली। निधि से हम नहीं पूछेंगे, पहले नेहा से पूछते हैं। नेहा बताओ, फिर मिनी से पूछेंगे। सर बी। मिनी, I don't know. रूपल जी, आई एम ऑल्सो डोंट नो। वेरी गुड। निधि तुमसे भी पूछ लेते हैं। सभी थर्ड फॉर्म। बिल्कुल, बी ही ऐसी क्रिया है जो अपने आप में एक से अधिक अर्थ रखती है। बी के प्रेजेंट में 3 रूप होते हैं, इज, एम, आर। पास्ट में 2 होते हैं, वॉज, वर। और अपने आप में निरापद भी होती है। आप लोगों को कई जगह पे बी ने मदद की है, जहाँ सेंटेंस बन ही नहीं सकता था वहां बी रख के आपने सेंटेंस बनाया है, ये आप जानते हैं, ये आपका अनुभव है। तो फाइनली उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ बी क्रिया ही रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि उनका एक पुराना नियम था। कौन सा बताइए? सर थर्ड फॉर्म वाला। थर्ड थर्ड फॉर्म वाला फॉर्म ही चीज, आएगा। 5 चीजों के बाद शायद मैंने, हो सकता मैं भूल गया हूँ, ना बताया हूँ। कुछ 5 चीजें होती हैं जिनके बाद फ्री रहता है। वर्क का थर्ड फॉर्म आता है। कौन सी? हैव, हैज, हैड, डोर, गेट्स, यही तो है। और बी
हैज, हैव, हैड, बी एंड गेट। 5 चीजों के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होता है या नाउन आता है। वो राउंड भी हमने खेला है। तो तब जाके उन्होंने यहाँ पे बीन रखा। ये बात अलग है दोस्तों कि आप अगर रटे हुए हैं तो यहाँ पिछले 27 साल से बीन बजाते तो आ रहे हैं, लेकिन यस आप सर, अभी तक आज तक कहीं नहीं सुना, मतलब समझा भी नहीं, पहले भी नहीं समझे, पहली बार मैंने सुना इस चीज के बारे में। इसलिए मैं रोक रहा था निधि तुम्हें कि भैया तुमने स्कूल में पढ़ा है, अच्छी बात है, तुम 27 साल से बीन बजा रहे हो, लेकिन क्यों बजा रहे हो उसी का तो हमने, इसीलिए तो हमने बोला था कि neither I am going to ask nor I am going to tell what is the formula, we are going to discover। हम खोजने जा रहे हैं सब लोग मिलजुल के कि कैसे, आखिर कैसे उन्होंने रखा होगा ये शब्द। तो आज क्लियर हो गया। और निधि की ये जो खुशी है, इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। अगर कोई बच्चा उस गहरी चीज पर तुरंत अपनी अपना फीडबैक देता है तो लगता है कि हाँ यार मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ। मैं फिर से निवेदन करूं क्या निशा से कि बेटा लिखना नहीं, अभी बहुत लंबा फॉर्मूला होता है इसका, नहीं तो फिर गोदा गादी काटा कुटी करोगी, फिर वो घिनापन लगेगा और फिर कंफ्यूज भी होगी। तो यहाँ पे आके प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट तो पूरा हो गया आपकी मदद से। अब चूंकि ये टेंस दो टेंसेस का संगम है, तो अब हम दूसरे टेंस की ओर चलते हैं। तो दूसरा टेंस कौन सा है मिनी? सब कंटिन्यूअस। नेहा, कंटिन्यूअस टेंस की अंग्रेजी में सबसे बड़ी पहचान क्या है? निशा तुम बता दो, निधि तुम बता दो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान अंग्रेजी में इज एम आर से। रूपल जी आप इतना दुखी फर्स्ट क्यों हो फॉर्म रहे ऑफ द वर्ब। हैं? रूपल जी दुखी है, कुछ कारण है क्या? नो सर। आपकी आवाज हम लोग को साफ नहीं सुनाई देती, लेकिन हमारी आवाज आपको साफ साफ आ रही है ना? अच्छी, इतना बात है। चलो मिनी से पूछते हैं। मिनी, सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हालांकि इतना बड़ा जवाब भी गलत है। सबसे बड़ी पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की आईएनजी। आईएनजी इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। तो आईएनजी तो लगेगा ही, है ना? और चलो निधि की बात का समर्थन कर देते हैं और आईएनजी हमेशा कायम में लगता है, सॉरी मिनी की बात का समर्थन कर देते हैं। तो यहाँ परफेक्ट टेंस बन गया। अब हम कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं। तो V1 प्लस अब रूपल जी आप बताइए अगले नंबर पे क्या आएगा, क्या लेंगे? सर टाइम। लगता है मेरी आवाज में भी शायद कहीं गड़बड़ी आ रही, क्योंकि मैंने रूपल जी का नाम लिया था, वहां से निधि ने बोल दिया। तो अब हाँ समझ गए, तुम केवल बॉडी लैंग्वेज से बताती जाया करो निधि, हम समझ जाते हैं। चलो निशा तो है नहीं, नेहा से पूछते। एक्चुअली नेहा से पूछने में डर इसलिए लगता कि आधे घंटे तक वो अनम्यूट करती है फिर जवाब देती है, इसलिए हम उससे पूछने में डरते हैं। तो निशा दिखने लगी है, निशा तुम बता दो। सब्जेक्ट। वेरी गुड। अब नेहा तुम बता ही दो। अच्छा नेहा चलेगी, रूपल जी सर आप ऑब्जेक्ट। वाह, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सवाल भी पूरा नहीं हो पाया, जवाब दे दिया।
गुड नेहा। प्लस सर लगा नेहा के सवाल का जवाब भी मिल गया। सर हमसे क्यों नहीं पूछते, आज जवाब मिल गया नेहा, तो म्यूट अनम्यूट में देर करती हो। प्लस लगाए कि ना लगाए नेहा? प्लस ऑब्जेक्ट। अब रूपल जी से एक चांस ले लेते हैं, इसके बाद प्लस हाँ निशा से भी पूछ लेते हैं। चलो I don't know. नेहा तुमसे ही पूछ लेते हैं। सर प्लस एक्सटेंशन। हाँ अब सुनिएगा, हमने क्यों मना किया था उन लोगों को जो लिखवे के लान मारे जाते, यहाँ पे एकदम से एक्सटेंशन नहीं आएगा बच्चे। यहाँ पे ये जो सही शब्द आप देख रहे हैं हिंदी में, इसके लिए 2 लेटर आते हैं, उनसे आप परिचित हैं 27 साल से। और कोई भी बता दे, आप सबको छूट है। कौन से 2 लेटर? Sir, for or since. We take, sir it is preposition, no? यस इट इज। अब इट इज नहीं बोलेंगे हम, दे आर prepositions. They are prepositions, हाँ। दे आर prepositions. अब रूपल जी बताइए उसके बाद क्या लगाएंगे आप? एक्सटेंशन प्लस एक्सटेंशन। हाँ रूपल जी अभी भी इसमें एक्सटेंशन नहीं आएगा, यही तो सबसे बड़ी बात है। इसमें ये जो लिखा है समय आएगा इसमें। और यही इसका एक्सटेंशन होगा। ये फार्मूला अभी तक के सारे फार्मूलों में सबसे बड़ा है, आप देखिए कितनी ज्यादा जगह लगी है, इसलिए मैंने लिखने से आप सबको रोक दिया था। अब मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं, और बल्कि एक काम और भी करता हूं, निधि से शुरू करता हूं। निधि लिखते लिखते इसको बोलते भी आप, और फिर किसी का नाम ले लो। Subject plus have been oblique has been plus first form of the verb plus ing plus object plus since oblique for plus time. Meaning Subject plus have been oblique has been plus first form of the verb plus ing plus object plus since oblique for plus time. Nehali? Subject plus have been oblique has been plus first form of the verb plus ing plus object plus since oblique for plus time. निशादी? Subject plus have been oblique has been plus the first form of the verb plus ing plus object plus since oblique for plus time. Sir, Rupaldi. Subject plus have been oblique has been plus first form of the verb plus ing plus object plus since oblique for plus time. All are done, sir. Is Mini rest? No? No, sir, I am done. आज दोस्तों गेम में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं आज का गेम। आज आप एक एक हिंदी वाक्य पहले हमें बना के दिखाइए, बाद में अपन इंग्लिश वाक्य बनाते हैं। जो आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है उससे एक हिंदी का कोई भी वाक्य बनाइए, इंग्लिश के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। तो सबसे पहले कौन बनाएगा एक हिंदी का? सर मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। Who is ready second? Sir, can I?
Yes, you मुझे can. फिर से भूख लगी है। Very good. Who is ready? मैं दोपहर से I'm काम ready, कर sir. रही Oh, I'm ready. Yes. सॉरी सर Okay, after you. Nidhi. मैं कल से सोच रही हूँ। Very nice. Neha. मैं सुबह से लिख रही हूँ। Very nice. Now nobody is rest. मैं दोपहर से काम कर रही हूँ। रूपल जी ने बना दिया था, मैंने तो सुना था। चलो अच्छा। एक बार और बोल दिया, कोई हर्ज नहीं। अब आपके सामने आपके जहन में कुछ हिंदी वाक्य आ गए जो आपके बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी के हैं। Sir, I have to ask something. हाँ प्लीज आस्क। सर हैव और हैज का तो मालूम है कि कैसे, सिंस फॉर का यूज नहीं पता है। हाँ अभी हमने जानबूझ के नहीं बताया है, इसको हम कल लिखवाएंगे, ठीक है। अभी तुम अंदाज से लगाओ और जहां गलती होगी मैं मदद कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी सर देर में, या चलो बता ही देता हूँ, बता दूं पहले सही सवाल। सर यस मैं अभी बोल क्लियर हो जाएगा प्लीज। हाँ यार सर ये सही बोल। सर मैं बोलूं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सर सिंस का मतलब ऐसा होता है कि कितने सिंस रूपल जी, गूगल इज टेकिंग फिटनेस। क्या एक्चुअली फिटनेस। टुडे ओके सिंस सिंस okay my voice is not good okay Sir, can I? यस इरशाद। सर सिंस का यूज मतलब अनिश्चितता के लिए होता है और फॉर का निश्चित के लिए, जैसे 5 years। और सिंस का यूज जैसे कि सुबह से, मतलब कोई फिक्स टाइम पता नहीं चल रहा है। गुड। ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों कि आपको हल्का सा जो भी पता हो वो आप व्यक्त करें। ये क्लास वन वे क्लास नहीं है, टू वे क्लास है, आपका भी सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब मैं बताऊं कि किसी के मन में और कुछ है तो वो बोल सकता है, अगर है थोड़ा बहुत तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब मैं बताता हूँ। आप लोगों ने जो भी बोला वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैंने इसको जिस तरह से लिया है वो आप देखिएगा। सिंस का प्रयोग फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर का प्रयोग फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। जो मिनी ने बताया वो भी बिल्कुल यही है, लेकिन ऐसे या ऐसे देख सकते हैं आप उसको, कान ऐसे पकड़ना या ऐसे, एक ही बात है। जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं कुछ उदाहरण भी लिख रहा हूं, आप उसको लिखते जाइएगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी जिसको बांटा ना जा सके, ये इतना छोटा है कि हम इसको बांट नहीं सकते। जैसे
2 o'clock, इसको हम बांट नहीं सकते, दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप बोलते हैं 2, तो आप इसको बांट सकते हैं, 2 hours को बांट सकते हैं, 1 घंटा प्लस 1 घंटा 2 भागों में पड़ जाएगा, या 1.5 घंटा प्लस आधा घंटा, यहाँ पे भी ये बढ़ जाएगा। तो इसको हम बांट सकते हैं, ऐसा भी आप मन में रख के चलिए। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक्यूरेट टाइम। हाँ, हम भारतीय भले ही इसकी इज्जत न करते हो, लेकिन यूरोप इसको अच्छे से समझता है। अगर कहीं पे 2 बजे का टाइम दिया गया है तो ठीक 2 बजे ही व्यक्ति वहां पहुंचता है। हम भारतीय अलग बात है, 2 यानी 2 बजे, तो एक्यूरेट टाइम है। बाकी भी मैं लिखता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। पहले मैं नीचे वाला लिखता हूं। चलिए मैं पहले ऊपर ही लिख देता हूं, 2 o'clock, जी सर, वो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उसमें सिंस 1828 लिखा रहता है। yes, absolutely right, very good, very nice, very good. सर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम को कैसे समझेंगे हिंदी में? जैसे 2 घंटे पीरियड है, 3 दिन, अरे ये हमने 2 बार लिख दिया, यहाँ थोड़ा सा बदल देते हैं, 2 hours 2 minutes रख लेते हैं। जैसे 6 साल एक पीरियड है ना, एक पीरियड है। जैसे तुम लोग 4 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो या 5 महीने से, जो भी, तो ये एक अवधि हो गई ना, इतने अवधि से सीख रहे हो तुम लोग। हम कब से जबलपुर में रह गए? जन्म से, एक अवधि हो गई ना, एक पीरियड हो गया कि कितने पीरियड से रह रहे हैं जबलपुर में, या रूपल जी नागपुर में कब से रह रही हैं, एक पीरियड हो गया। रूपल जी आप नागपुर में कब से रह रहे हैं? हिंदी में जवाब देना, इंग्लिश तो अभी ना। 23 ईयर्स से मैं नागपुर में रह रही हूँ। ये पीरियड हो गया, ये 23 साल से नागपुर में रह गई है, ठीक है। निधि तुम अपने बच्चे को कब से पढ़ा रही हो? सर काल्पनिक उत्तर। फॉर 4 years। हिंदी में सर 4 साल से। 4 साल से। या हम इसको दूसरी तरीके से पूछ लेते हैं, निशा तुम्हारी बेटी कब से स्कूल जा रही है? सर फॉर 4 years।
4 साल। हाँ, निधि तुम कब से इंग्लिश सीख रही हो? सॉरी मिनी, तुम कब से इंग्लिश सीख रही हो? सर 3 महीने से। हाँ। निशा तुम कब से जिम जा रही हो? कितने दिनों से जिम जा रही हो? सर 2 महीने से। अरे हमें नेहा से पूछना था, हमने गलती से तुम्हारा नाम ले लिया। नेहा तुम कब से जिम जा रही हो? सर 4 महीने से। हाँ, काफी दुबली लग रही हो, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतनी देर में मैं बोर्ड के सामने से हट गया था, लिख लिया होगा। अभी भी शायद कुछ लिख रहे हैं तो सुनते जाइए, मैं बोर्ड पे नहीं आ रहा हूँ। दोस्तों बिल्कुल चिंता मत करना, ये जो दोनों चीजें हैं, जब सेंटेंस बनाएंगे ना, इसका हम सेंटेंस देंगे कोई भी, तो जब उस पॉइंट पे जब जैसे ही पहुंचना तो 2 मिनट रुकना, सोच लेना, जैसे नेहा रुकती है ना वैसे कुछ सेकंड रुकना, सोच समझ के फिर समय रखना। पहले देख लेना कि वो समय पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा। मैं इसमें 4 से 5 सेंटेंस दूंगा, बल्कि जितने लोग हैं सबको एक एक सेंटेंस दूंगा, तो इसमें तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कहाँ सेंस लगाना है, कहाँ फॉर। और अगर थोड़ी बहुत कमी छूट गई दोस्तों, तो जब इसके बाद वाले टेंस में हम आएंगे, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी सेम यही चीजें लगती हैं। तो उसमें भी हम 5-6 सेंटेंस देंगे, जितने लोग हैं उतने सेंटेंस देंगे, तो सब लोग एक एक बना लेंगे, तो वहां जाके डाउट बहुत कम रह जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो जो आखिरी टेंस है अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें पूरा डाउट तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी तुम्हें सेंस फॉर लगाना पड़ेगा। और उसमें भी अगर इतना सा मान लीजिए रह गया दोस्त, मान लो इतना सा डाउट रह भी गया या किसी को नहीं आया समझ में, तो फिर वो चिंता बिल्कुल मत करना, उसको कभी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता मत करना, उसको जिंदगी भर कभी नहीं समझ में आएगा, तो फिर चिंता की क्या बात है ना। आराम से रहना, कोई चिंता की बात नहीं, कभी नहीं आएगा समझ में। तो चलते हैं अपन क्लास को इस हास्य के साथ। कुछ लोग इसको पता नहीं गंभीरता से ले रहे थे, कि जैसे भी ले रहे थे ये हास्य था, इसके साथ विराम देते हैं, कल को सेंटेंस बनाएंगे। सर नेहा को ऐसा लगता है जैसे हिलना डुलना नहीं, सीधे बैठ के हंसना, मुंडी भी नहीं। कल तुम लोग प्रैक्टिस करते रहे, अच्छी बात है, ऐसे कर सकते हो। और शनिवार को हम क्लास नहीं लेते हैं, तो तुम में से कोई भी भेज सकता है लिंक, मालूम, आपस में डिसाइड करके लिंक भेज दो, थोड़ा हिंदी में बतियाओ, इधर उधर की बात करो, सब दुनिया भर की बात करो, थोड़ा बहुत इंग्लिश कर लो। और उसमें 1 घंटे के लिए जरूरी नहीं है, आधे घंटे बाद जिसको जाना है वो बार बार घर चला जाए, जिसको रहना है वो रहे। जैसे हमारी क्लास छोड़ने के बाद जिसको रुकना रहता है वो रुकता है, जिसको जाना है चला जाता है। तो शनिवार को थोड़ा सा ऐसा डिस्कशन कर लिया करो, है ना। तो कल से अपन सेंटेंस बनाएंगे इस टेंस के, तो उसमें थोड़ा सा डाउट कम होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू सर। Minnie, who is crying over there? Yes. Minnie. Yes, Dee. My neighbor's daughter is crying. Rupal ji, I have the have you class. say something? I left. No, okay. I left the class Okay. because I'm going to walk. नेहा दी Walk time. नेहा दी ऐसे बैठे रहती है, जैसे बचपन में एक गेम खेलते थे ना, रेडी सेडी गो, और हाँ। स्टॉप हो जाते थे एकदम। बिल्कुल हंसना है हाँ। तो ऐसे देखो,
बस हाँ तो आवाज नहीं आनी चाहिए म्यूट में भी नेहा की, और हिलना नहीं चाहिए अच्छी बच्चे की तरह, बिल्कुल स्ट्रेट। इसलिए तो अपन यूट्यूब में नेटवर्क चले जाते ज्वाइन हैं, किया है। नेटवर्क गोल हो जाते हैं। इसलिए मैं Yeah, ज्यादा today my network is not good. बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही ट्रिपल जी, कहीं कहाँ है आप? अब वीडियो देखना अच्छा। ओके आप बाय अपनी बाय। Okay. आप आज का वीडियो देखोगे ना तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा, है ना? अभी भी यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। Okay. Okay. Good. Bye. 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 ओके, आप जरूर वीडियो देखना है ना, तो समझ में आ जाएगा कि मतलब कैसे थे। Okay.